Brothers and sisters, I'd like to share with you what God has taught me from His Word. And in the 55 years that I've been a believer, I'm 75 today, not today, I mean now. And in 40 of those years, 50 of those years I've been serving the Lord, 40 years we've been planting churches. We've tried to follow the Bible exactly, especially the New Testament. प्रिय भाइयों और बहनों, मैं जो परमेश्वर ने अपने वचन में से मुझे सिखाया इन 50 सालों में, करीबन इस समय मैं 75 वर्ष का हूँ, और जो कुछ परमेश्वर ने मुझे सिखाया अपने वचन में से बिल्कुल वैसा का वैसा नए नियम में से मैं सिखाना चाहता हूँ. I'm sorry, I forgot your word. Okay. Let's turn to Proverbs in chapter 24. आइए हम नीति वचन 24 अध्याय निकालें. Please meditate as we read from verse 30 to 34. और खास करके आप ध्यान मनन करें जब हम यहाँ पे 30 से लेके 34 तक हम वचन पढ़ेंगे. I will just read it in English. और आप जो है अंग्रेजी में पढ़ेंगे. You can please follow in your Hindi Bibles. और आप लोग हिंदी वचन को पढ़ सकते हैं. Proverbs 24 verse 30. और 24 नीति वचन 24 उसका 30वां वचन. I passed by the field of the sluggard and by the vineyard of the man lacking sense. And behold, it was completely overgrown with thistles. Its surface was covered with nettles. Its stone wall was broken down. When I saw, I reflected upon it. I looked, and I received instruction. A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and your poverty will come as a robber, and your want like an armed robber. What we read here is something that we have seen very commonly. और हमने जो यहाँ पे देखा है वो बिल्कुल साधारण तौर से हम देखते हैं वो वस्तु हमने पढ़ा है. What we have seen here in Proverbs 24 and verse 30 is what we have seen around us. और जो हमने यहाँ पे पढ़ा है वो हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं. You can see so many fields which are like this, destroyed by nature. और हम देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे खेत हैं जो कि बिल्कुल प्राकृतिक तौर से नाश पड़े हुए हैं. But when you see a beautiful garden, well maintained, you know that somebody took care of it. जब आप कोई खूबसूरत बागीचा देखते हैं तो आप ध्यान कर सकते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति ने उसका देख रेख रखा है. If you leave that garden alone, doing nothing for 1 year, it becomes a wilderness. अगर जो वही बगीचा का कोई देखभाल ना करे तो एक साल में वो बिल्कुल जंगल जैसा हो जाता है. And that's what's written here. और वही यहाँ पर लिखा हुआ है. And this is a description of what has happened to Israel and the church through these 4 centuries. और ये 4,000 years. और ये 4,000 वर्षों में इज़राइल और जो कलीसिया के अंदर जो हो रहा है या हो चुका है वो उसके बारे में यहाँ पे विवरण दिया गया है. The nation of Israel started in Canaan or from Abraham about 4,000 years ago. और करीबन 4,000 साल पहले इज़राइल का उत्पत्ति या आरंभ अब्राहम के द्वारा हुआ. And when they came into the land of Canaan in the time of Joshua, it was like a beautiful garden. और जब योशुआ के समय में वो जब कनान देश में प्रवेश किया उस समय बहुत खूबसूरत बगीचे के समान था. But by the time Joshua died, और जब तक जोशुआ मर गया, and the other elders also died, और उसके बाद जितने वहाँ के बड़े बुजुर्ग थे उनके गुजरने के बाद, you read in the whole book of Judges that it was a wilderness. और उसके बाद न्यायों की किताब में हम पढ़ते हैं कि वो बिल्कुल जंगल के समान. And there was a reason for that. और उसके पीछे एक कारण है. And that reason is described in the last verse of the book of Judges. और न्यायों के आखिरी किताब में उसका कारण वहाँ पे लिखा हुआ है. Everyone did, that is Judges, and the last verse, which is chapter 21 verse 25, everyone did whatever was right in his own eyes. और वहाँ पे 21 के 25 में न्यायों 21 के 25 में लिखा है हर एक व्यक्ति ने अपने आंखों में जो सही लगा वही काम किया. So remember that phrase. Everybody did
whatever they thought was right. यानी कि जिसको जो ठीक सूझ पड़ा उन्होंने वैसा का वैसा किया। That is the way a garden becomes a wilderness. और यही कारण है कि एक बगीचा एक जंगल बन गया। And then God began a work through David और उसके बाद परमेश्वर जो है दाऊद के द्वारा बात and करने लगा established the kingdom. और उसके बाद उस देश को वहां पे बनाया। And he was a man after God's own heart. He made a few mistakes. और उसने बहुत सारी गलतियां की, उसके बावजूद वो परमेश्वर के हृदय को जानने वाला एक व्यक्ति And then he था। handed over to his son. और उसके बाद उसने अपने बेटे को सौंप दिया। And Solomon started very well. और सुलेमान ने बहुत ही अच्छे तरीके He से आरंभ किया। inherited a beautiful garden from his father. और उसने विरासत में अपने पिताजी से उस बहुत खूबसूरत बगीचे को पाया। But very soon he drifted. लेकिन उसके बाद वो जो है पीछे गिरने He लगा। started in such a humble way. Oh God, I'm a child. I don't know. Please give me wisdom. और उसका आरंभ में उसने एक बच्चे के समान बिल्कुल हलीम होकर उसने जो है परमेश्वर के सामने बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, तू मुझे सिखा। But very soon he went away. लेकिन उसके बाद वो वहां से खिसकता गया। Drawn away by two things. और दो चीजों से वो पीछे की ओर चला गया। Women and money. एक है स्त्री और दूसरा है धन दौलत। It has been the downfall of Christian leaders through 2000 years. और यही 2000 साल से जो है मसीह अगुओं का भी यही कारण बन रहा है। And one more, pride. और घमंड। These are the three things. और ये तीन चीजें। And gradually that Israel became a wilderness. और उसके बाद जो इजराइल देश है वो बिल्कुल जंगल के समान हो Not गया। in the eyes of the world. केवल संसार के नजर में In नहीं। the eyes of the world, it was one of the richest countries. और संसार की नजरों में वो सबसे धनाढ़ी एक देश है। Solomon was the richest king in the world. और सुलेमान जो है दुनिया का सबसे अमीर एक राजा। Just like today we see magnificent huge churches that have TV programs. जिस प्रकार से आज के बड़े बड़े कलीसियाओं को देखते हैं जहाँ पे And टीवी प्रोग्राम होते whose हैं preachers are like film stars. और फिल्म स्टारों की तरह वहाँ के अगुए होते हैं। Huge structures which they call their church buildings. और बहुत बड़ा इमारत होता है जो कि वो उनकी कलीसिया कहते हैं। Just like Solomon's empire. जैसे सोलोमन बादशाह का जो राज्य था वैसा। But in God's eyes, a wilderness. लेकिन परमेश्वर की नजर में वो एक जंगल था। Spiritually a wilderness, materially a palace. आत्मिक तौर से एक जंगल, लेकिन जो वस्तु तौर से वो बहुत ही धनाढ़ी जगह है। So when believers don't have spiritual eyes, they see the palace. और जब आत्मिक लोगों के आत्मिक आंखें नहीं खुलती है या उससे नहीं देखते हैं तो उनको वो एक महल लगता But if है। you have spiritual eyes, you see the wilderness in the midst of all those fantastic structures. लेकिन आत्मिक दृष्टि से अगर जो देखे तो उस महल के बीच में भी उनको वो जंगल नजर आएगा। You see the wilderness in the midst of all those expensive TV programs. और इन सब महंगे टीवी प्रोग्राम के बीच में भी उनको जंगल नजर आएगा। And you're not impressed by the film star like preacher. और जो फिल्म स्टार की तरह जो प्रचार करते हैं उनसे आप खुश नहीं होंगे। But there are very few people who have spiritual eyes. लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनकी आत्मिक आंखें That has been true throughout history. और वो इतिहास में ऐसा ही चल रहा है। So people in Israel couldn't understand what was wrong with Solomon. और इजराइल के लोग नहीं समझ पा रहे थे कि सुलेमान से क्या गलती हो रही What है। does it matter if he had many wives? और क्या बुरा बात है कि उसके बहुत सारी बीवी है। David had many wives. दाऊद के भी बहुत सारे Abraham बीवी had many wives. थे और अब्राहम के बहुत सारे बीवी थे। Yeah, but there was a difference between Solomon compared to David and Abraham. लेकिन तुलना अगर जो करे डेविड और अब्राहम से तो सुलेमान का बहुत ही भिन्न है। And very few people could see it. और बहुत कम लोग उसको पहचान सकते हैं। And Israel declined. और इजराइल देश जो है वो नीचे की ओर And गया। then God would now and then send a prophet. और वहां पे भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने भेजा। Elijah. एलिया को भेजा। One man. एक व्यक्ति। He stood against all the false prophets. और वो हर एक झूठे भविष्यवक्ताओं के खिलाफ खड़ा हुआ। Even the king was terrified of him. और यहाँ तक कि राजा भी उससे भयभीत था। And in one day he turned the nation back to God. और एक ही दिन में उसने पूरे देश को परमेश्वर की ओर फेर लिया। But it didn't last long. लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं रहा। And again it went down. लेकिन उसके बावजूद फिर वो जो है पीछे की ओर गया। Elisha followed him. और एलिशा उसके पीछे हो लिया। But Israel declined. लेकिन उसके बावजूद इजराइल जो है गिरता गया। If you read the book of Kings and Chronicles, अगर जो आप इतिहास की किताब और राजाओं की किताब पढ़ेंगे every now and then there'd be a good king. तो वहां पे देखते हैं कि कभी कभी वहां पे एक अच्छा राजा आता है, Like Hezekiah जैसे कि एजकिय्याह or वगैरह, Josiah. जोशिय्याह। But then they would again go down. लेकिन उसके बाद फिर वो पाप में गिर It was जाते a हैं। constant history of somebody building up a garden,
and the next generation it becomes a wilderness. और लगातार ऐसा ही हो रहा है कि एक व्यक्ति आता है, वो बगीचे को बनाता है, फिर वो जंगल की तरह बन जाता है. Just like we read in that Proverbs chapter where people go to sleep spiritually. जैसे कि हमने नीति वचन में देखा कि आत्मिक तौर से लोग निद्रा में चले जाते And then हैं. a person goes to sleep, the garden becomes a wilderness. और जब लोग निद्रा में चले जाते हैं तो बगीचा जो है जंगल बदल जाता So है. God finally warned them through Jeremiah. और यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने उनको एक चेतावनी दिया Spoke to them for 40 years और 40 साल तक बात किया उसके द्वारा. and said, if you don't listen to me, I will send you as captives to a strange land. और परमेश्वर ने कहा अगर जो तुम मेरे वचन को नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे, तो मैं तुम्हें गुलाम करके भेज दूंगा. They didn't listen. और उन्होंने नहीं They सुना would throw Jeremiah into a pit, और उन्होंने यिर्मयाह को एक खड्डे में डाल दिया. slap him, put him, trouble him in so many ways. हाँ, मारा पीटा और बहुत तरीके से उसको परेशान किया. Stephen said to the chief priests in Acts 7, which of the prophets did you not persecute? और स्तेफानोस ने जो है प्रेरितों के काम ने बोला कि तुमने कौन से भविष्यवक्ता को छोड़ा है या बगैर That उसको means- ताड़ना दिए छोड़ा है. Those words indicate that in the entire history of Israel, every prophet was persecuted. इसका मतलब ये कि पूरे इतिहास में इजराइल में ऐसा ही दोहराते रहे, हर एक भविष्यवक्ताओं को वो परेशान करते थे. Because the prophets did not speak to tickle people's ears. क्योंकि वो जो भविष्यवक्ता लोग हैं वो किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं बात The करते थे. prophets did not fool around with women. और वो जो है औरतों के साथ नहीं घूमते थे. They did not want money. और उनको धन दौलत की जरूरत They नहीं. would live simply. और वो बिल्कुल साधारण तौर से जीते हैं. Even if a rich Syrian general like Naaman would come and offer money, Elisha would say, I don't want one pie of that. और सीरिया के जो है बड़े जनरल भी आ जाएं तो भी उनसे जो है, जैसे नेमान आया तभी एलिशा ने उनको मना कर दिया पैसे लेने He के लिए. didn't even go out to meet him. और उससे मिलने के लिए भी नहीं गया. These prophets didn't care for big people or rich people. और ये भविष्यवक्ता लोग जो है बड़े धनाढ्य व्यक्तियों की जो है उनसे ज्यादा वो नहीं रखते. That is स्थालुका. very rare in Christendom today. और आज मसीह दुनिया में ऐसा बहुत कम पाया When जाता I है. was a young Christian, जब आप एक जवान मसीह थे newly converted, और नए नए मसीह में आए थे and I looked around at the different churches, और मैंने भिन्न भिन्न कलीसियाओं को देखा, see, because I grew up in a Syrian Orthodox church, क्योंकि आपका पालन पोषण सीरियन ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में हुआ. and then I came to all these believers, evangelical groups, और उसके बाद विश्वासी या इवेंजेलिकल ग्रुप में आए and I saw one thing that was common in all of them. और फिर मैंने एक ऐसा वस्तु पाया जो See, सब कलीसिया में है. I mean, there's a lot of difference in doctrine between the Catholics and the CSI, और सिद्धांत में जैसे डॉक्ट्रिन कैथोलिक वगैरह है उनमें भिन्नता है. or CSI or Pentecostal brethren. There are a lot of differences in doctrine. भिन्न भिन्न कलीसियाओं में भिन्न भिन्न जो है सिद्धांतों में फर्क है. But when I looked around, keeping my eyes open, I saw something. लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोल के दूसरे कलीसियाओं को देखा तो मैंने एक चीज सीखा. I saw that in every church, those who were rich, educated, and in good positions would always be the board members. तो मैंने एक चीज पाया कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति जो है वहाँ के बोर्ड मेंबर्स रहेंगे. If there was a senior police officer in a church, he would definitely be a board member. अगर जो कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर रहेगा तो वो वहाँ का बोर्ड मेंबर जरूर रहेगा. And I said, Lord, what is this? तो मैंने परमेश्वर से पूछा ये क्या है? Is all these rich people only are spiritual? क्या ये अमीर धनाढ्य व्यक्ति ही केवल आत्मिक लोग हैं? There's no difference between the Catholic and the Pentecostal, and when it comes to that, और इसका मतलब कैथोलिक कलीसिया और पेंतिकोस्त में कोई फर्क नहीं some रहा. people say we are baptized in the Holy Spirit, but what did the Holy Spirit teach you? हाँ, यहाँ पे बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में प्रचार करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा क्या The सिखाती है? brethren would say New Testament pattern, but it was the same story there. और ब्रदरन कलीसिया में जाएं और वो नए नियम का पालन करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी यही कहानी दोहराया जाता है. I'm not criticizing anybody, I'm just telling you what I observed. मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन जो मैंने देखा है वो बता रहा हूँ. And if you don't believe it, just go around and check even today. अगर जो आप विश्वास नहीं करते हैं कि आप जरा जाकर देखिए, आपको भी यही मिलेगा. But that wasn't Jesus. Group was not like that. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो समूह था वो ऐसा नहीं था. Jesus had unlearned fishermen who were some of his chief leaders. और प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो मछुआरे थे, मच्छी पकड़ने वाले थे. They knew God. लेकिन वो परमेश्वर को जानते थे. They didn't just speak in tongues. और वो अन्य भाषा में बात नहीं करते They थे. knew that was not the main thing for them. और वो समझते थे कि वो नहीं है उनके लिए प्रमुख They knew चीज. God, that was the main thing. और उनके लिए प्रमुख बात था वो कि वो परमेश्वर को जानते थे. And they knew, like it says in James chapter 2, God has chosen the poor of the world rich in faith. और याकूब की किताब दूसरे अध्याय में जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने जो है संसार के मूर्खों को चुना है ताकि लज्जित करे बुद्धिमानों को. I was young, 20, 21 years old. और उस समय मैं जवान था, 21-22 साल का. Who was I to question all these great big people? और इन महान लोगों से प्रश्न करने का मैं कौन हूँ? But I observed it. लेकिन मैंने ये ध्यान दिया. And I said, Lord, if ever in my life
I have any responsibility in a church, I will never do it like this. और मैंने ये निर्णय लिया कि अगर जो मेरे को कोई भी जिम्मेदारी कलीसिया में मिलता है तो मैं इस प्रकार से नहीं करूंगा। Not that I will favor the poor. ऐसा नहीं कि मैं गरीबों का साथ दूंगा, That will also be wrong. और वो भी गलत है। But I will value those who are godly लेकिन मैं उनको मूल्य दूंगा जो परमेश्वर ईश्वरीय भक्त हैं and humble. और जो नम्र हैं। And it make absolutely no difference to me whether they are poor or rich. और ये मेरे को कोई भी जो है भिन्नता नहीं मेरे अंदर होगा कि वो अमीर है या गरीब है, Or whether educated or not educated. या पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। So that's what these prophets stood for in the Old Testament. और पुराने नियम में ये भविष्यवक्ता लोग इसी के लिए खड़े रहे। Finally, आखिर में God sent Israel to Babylon. और बेबीलोन देश में जो है गुलाम बनाकर परमेश्वर ने भेज दिया इस्राएलियों को। Israel and Jerusalem became a wilderness. और यरूशलेम जो है बिल्कुल जो है एक जंगल की तरह हो गया।